Alright guys, welcome to the top 5 of this week. And yes, we all are happy India won the match. Even Modi ji was also watching. इन्होंने रात को ट्वीट किया मित्रों, भाइयों बहनों, honestly it was so good to see that and that knock of Pandya. बस ये कॉन्फिडेंस चाहिए लाइफ में. मजा आ गया मैच देख के. पूरे इंडिया में सेलिब्रेशन हो रहा था, सब हमारा प्यारा तिरंगा लहरा रहे थे. लेकिन ये क्या हुआ? बट सीरियसली व्हाई यू आर नॉट डूइंग दैट? ये फीलिंग होती है देशभक्ति की. मैंने अपना डीपी अभी तक नहीं बदला, बदलूंगा बाद में कभी, पर क्यों? व्हाई ही डिडंट डू दैट? कैमरा ईश्वर कर दो तुम. एंड आफ्टर दैट ट्रोलर्स हु आर एक्टिव. तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? लोगों ने कहा अरे ये क्या, ये बाजवा के बेटे के साथ बैठे हुए हो हैं? Believe that we're going to talk about it more, but let's start this top 5. Again, I'm telling you, love and respect of Prime Minister, but there are a few things that Modi media is not showing at all. That's why I'm coming up with this series. तो करना. मतलब seriously, मतलब लोग रोड पे निकल के हमारा ध्वज फहरा रहे थे, ये वहां पे खड़े होके क्यों नहीं? क्यों? We won the match on Sunday night and Monday morning this news came and it was breaking my heart. Yes, dollar is equals to 80 rupees now. 80 was in the afternoon. Right now when we are recording the show in the evening it was 79.90 something, but it's like rolling on 80. फिर से लोगों को वही बात याद है कि मैं सरकार में बैठा हूं, मुझे पता है मित्रों. इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता. Now people will come and say every country is facing this problem. Okay, but why our finance minister Nirmala Sitharaman ji said this? Indian rupee versus other currencies, it's appreciating in its value. मगर क्यों? मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? So yeah guys, so what is sign? It never happened before. Please control that. At least make it 78 or something. There's no collapse, sir. Honorable member, I would like to assure you through you, sir, there is no collapse of the Indian rupee. और अब बात आती है उस बंदे की जिसने हमें सपना दिखाया था कि तो 35 भी हो जाएगा. रुपी वैल्यू इज नॉट इंक्रीजिंग एट ऑल. शेयर मार्केट में इनके शेयर की वैल्यू अच्छे से बढ़ रही है. और अब फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि भैया तुमको अपना धंधा करना है, करो, नहीं मना कर रहे, पर किसी का दुष्प्रचार तो मत करो. Supreme Court of the country has now pulled up Baba Ramdev over his comments on allopathy in a bid to promote Ayurveda. It's good you want to increase your business. Nice. Now the bench that was headed by the Chief Justice of India N.V. Ramana also issued a notice to Patanjali Ayurveda and the central government over a plea that was filed by Indian Medical Association. Okay, he's a businessman, he wants to grow his business, completely okay, no problem at all. But why are you defaming others? Now the bench has remarked that why should Baba Ramdev criticize the doctors and then go ahead to abusing them? There are so many times he did that, multiple times. एलोपैथी एक ऐसी स्टूपिड और दिवालिया साइंस है. फिर इतने डॉक्टर मर गए टर. 1000 डॉक्टर तो अभी कोरोना की डबल वैक्सीन लगाने के बाद मर गए. When he said things like that, let me tell you, he has so many millions and millions of followers. They will believe the same thing. मेडिकल साइंस से विश्वास उठ जाएगा. जो लोग बाबा रामदेव में विश्वास नहीं रखते उनका आयुर्वेद से विश्वास उठ जाएगा. ये तो हम नहीं चाहते ना. उनका अपमान कर रहे हो जिन्होंने कोरोना में अपनी जान पे खेल के दूसरों की जान बचाई है. आप पूरी मेडिकल साइंस का इतना उपहास उड़ा रहे हो. मैं आप कितने सारे लोगों से लाभ लेते. तो अपना बिजनेस बढ़ाओ लेकिन दूसरों पर लांछन तो मत लगाओ. क्या कर रहे हो बाबा जी? पूछ पड़ेगा मेरी. So it's fair enough that he is doing a business. All right. Now let's talk about his products. He's one of the most profitable venture, Patanjali ghee. Okay, people are buying it, consuming it, but there are impurities. खाद्य सुरक्षा और औषधि विभाग ने पतंजलि ब्रांड के गाय के घी का सैंपल उत्तराखंड के टिहरी की एक दुकान से लिया और उस सैंपल को राज्य की प्रयोगशाला में भेजा गया. घी के सैंपल के टेस्ट का रिजल्ट बहुत चिंताजनक आया है. Yes, I'm talking about the Patanjali ghee. That was the news this week. जिस घी को शुद्ध बताकर बाबा जी खुलेआम बेच रहे हैं वो ना तो खाने लायक है बल्कि आपके और आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है. चलो बाबा जी, हम सारी बातें भूल जाते कि इनको वोट दोगे तो पेट्रोल कम हो जाएगा, डॉलर रुपी बराबर हो जाएगा, ये सब भूल जाते. जो आप बेच रहे हो वो तो कम से कम प्योर बेचो. क्या कर रहे हो? पूछ पड़ेगा मेरी. अरे यार, नाउ वन मोर बिजनेसमैन ऑफ इंडिया मिस्टर गौतम अडानी. तो ये एनडीटीवी खरीद रहे हैं, नहीं खरीद रहे हैं, बस यही डिस्कशन चल रही है अभी तो. पर हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं, हम उस पर बात कर रहे हैं जो कि इनके ऊपर है. आई एम टॉकिंग अबाउट डेट. बहुत सारा है यार. क्रेडिट ने यह भी कहा कि अगर हालात बिगड़े तो कंपनी कर्ज के जाल में बुरी तरह फंस सकती है.
इतना ही नहीं, कंपनी डिफॉल्ट भी कर सकती है, यानी बैंकों का कर्ज चुकाने से चूक भी सकती है। कभी कभी सोचने में आता अगर ये देश छोड़ के निकल गया बंदा तो कितना कर्जा हो जाएगा। गया। आई एम सेइंग दिस बिकॉज इट हैपेंड सो मेनी टाइम्स। आई मीन ही हैज सो मच ऑफ डेट ऑन हिम। और आपको पता ही है कि मुद्रा पोर्ट पे कितना ड्रग्स पकड़ में आता है। यू कैन फाइंड गोदी मीडिया इज नॉट टॉकिंग अबाउट इट एट ऑल, बट दिस इज एक्चुअली डिस्ट्रॉइंग आवर फ्यूचर। I mean, who is consuming that much of drug? I mean, seriously, कौन है वो लोग, कहां से आते हैं? मतलब इतना पकड़ में आ जाता है तो ये कितना कंज्यूम हो रहा है और इससे हमारा फ्यूचर क्या होगा, ये कोई सोच ही नहीं रहा है यार। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? And now let's talk about our beloved Khattar Saab. He did something and it was again great. 100 स्कूल तो ऐसे हैं जिसमें टीचर्स की संख्या कम है और अध्यापक उसमें ज्यादा हो गए। फिर इस पे डिबेट हो गई कि फीमेल्स को टीचर बोलते हैं और मेल्स को अध्यापक साहब बोलते हैं इज्जत से। हरियाणा की बात है ये भी, जो भी आप बताना, मैं तो नहीं रहा हूं। जिसमें टीचर्स की संख्या कम है और अध्यापक उसमें ज्यादा हो गए। बट हाँ, खट्टर साहब को पहली बार नहीं है। उसमें कहावत कही गई है कि मददे मर्दा। एंड व्हेन खट्टर साहब इज एंग्री, लीव ऑल दीज वायरल वीडियोस, लेट्स कम बैक टू द मेन थिंग। गवर्नमेंट स्कूल एंड प्राइवेट स्कूल गाइस, यू वोंट बिलीव दैट गवर्नमेंट स्कूल तेजी से कम होते जा रहे हैं देश में, और अगर निजीकरण हो गया स्कूलों का। हरियाणा की सरकार ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, अगर तुम्हें पता हो, जिसमें सरकार ने लिखित में आया था अखबार में, तो बहुत दूर हो जाएगी गरीबों से शिक्षा। ये बहुत चिंता का विषय है। सरकार ने क्या कहा, अगर किसी की सालाना आय 1,80,000 से कम है, ये बहुत ही कम है, 1,80,000 पूरे साल के, किसी को इतने से कम मिलते हैं तो वो अपने बच्चे को अगर सरकारी स्कूल में भेजता है तो उसको 500 रुपए फीस देनी पड़ेगी। Let me show you one more viral video and you will understand the gravity of the situation. और अगर वो अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में भेजता है तो उसकी फीस हम भरेंगे, यानी सरकार भरेगी। 1100 रुपए तक हम उसको फीस दे देंगे। अब सोचो, अपने घर से बच्चा सरकारी जाएगा तो पैसे लेके जाएगा और प्राइवेट जाएगा तो खाली हाथ जाएगा, क्योंकि उसके पैसे कहां से आएंगे? सरकार। बड़ा अच्छा काम है ना। I mean, try to understand what she is trying to communicate over here, and it's a really, really dangerous situation for the country. लेकिन इससे पता क्या होगा, 5-7 साल बाद सरकार कहेगी बजट बहुत गड़बड़ा गया और ये जो 1100 रुपए हम देते हैं, हम आगे इसको कैरी ऑन नहीं कर पाएंगे। उन 5 सालों में सरकारी स्कूल बंद होने की कगार पर आ गए होंगे। धीरे धीरे करके सरकारी स्कूल से एडमिशंस खत्म। बिल्कुल आपने मेरे दिल की बात बता दी। And things we do for the love of camera. तू मेरी जान है, तेरे मेरे बीच में कोई नहीं आ सकता। मतलब ज़कबा को भी धक्का दे के आ चुके हम। साथ मोदी बातचीत कर रहे थे। क्या बहुत सारी चीजें हुई इस वीक। एक और वीडियो वायरल हुआ, गिरते को सहारा देना तो महापुरुषों का कर्तव्य होता है। मोदी जी क्या? Okay, now guys, this is number 2. And did you notice that? What? No, I want you guys to notice that. You know, मुद्रा पोर्ट पे बार बार ड्रग्स पकड़ में आती है, उसकी रिपोर्ट नहीं होती। ये सारी न्यूज कटिंग्स है, चेक तो करो। ये हर हेडलाइन में लिखा है कि इस बार इतने करोड़ की पकड़ी, इस बार उतने करोड़ की पकड़ी। ये सब कुछ आता है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट नहीं करता। ऐसी एक और चीज बार बार हो रही है कंट्री में। हो क्या? I mean, it's a rainy season. Obviously, we have to notice that. मतलब गोदी मीडिया का पत्रकार इधर से उधर झूल जाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि सड़कों की हालत कितनी खराब हो चुकी है। सब चंगासी। अभी मैं आपको बताता हूँ, ऐसे 4 बड़े इंसिडेंसेस हुए हैं यहाँ पे सड़कें एकदम खत्म। The time when our Prime Minister said that मुफ्त की रेवड़ियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जुलाई को किया था, लेकिन उद्घाटन के 5 दिन के भीतर ही एक्सप्रेसवे कई जगह धंस गया। अरे मोदी जी, मुफ्त के गड्ढे भी तो मिल रहे हैं जनता को, उनका कुछ निदान कर दो। नहीं लेंगे मुफ्त की रेवड़ियां। नाउ दिस इज नंबर 2। हिमाचल प्रदेश के सोलन में हाईवे की ओर जाने वाले एक फ्लाईओवर का एक हिस्सा गिर गया है। अभी हाल ही में ग्रेटर नोएडा में हुआ, यहाँ तो गड्ढा देखो, ओहो, ऐसा लग रहा है किसी हॉलीवुड मूवी की शूट चल रही थी। पटना में भी हुआ। इन गड्ढों में से एक गड्ढा तो ऐसा है जो 100 फीट लंबा है। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि 7 साल से इन सड़कों का यही हाल है। फिर लोग ट्रोल करके बोलते हैं कि देखो गडकरी साहब इसका एक सोल्यूशन ढूंढ चुके तो क्या? उड़ती हुई बस पे आएंगे। वो देखो आ रहे। नो, लेट मी टेल यू समथिंग ऑनेस्टली, दीज बैड रोड्स
आर एक्चुअली खराब सड़कें नहीं, जानलेवा सड़कें। कल ये वीडियो वायरल हुआ है, खराब सड़क की वजह से देखो वो बंदा ट्रक के नीचे आ गया यार, बहुत दुखद हादसा था। दीज आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट मीडिया शुड रिपोर्ट बट यू वोंट फाइंड देम। हिंदू मुस्लिम और थोड़ा टाइम मिल गया तो फिर सबकी देशभक्ति पे सवाल खड़े करना शुरू कर दो। अच्छा तुम देशभक्त नहीं हो, डीपी का है तुम्हारी? दिस इज द क्वेश्चन, एक्चुअली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। घर घर तिरंगा अभियान में हम सब ने पार्टिसिपेट किया, मैंने भी किया है, और ये जज्बा हमारे दिल में है। पर जहां हम घर घर तिरंगा अभियान सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहां पे सर इंडिया की जीत पे तिरंगा लहराने में ऐसा कैसे सर? So all these things are going on. One more time I want to tell you, हमारी मीडिया बिल्कुल सही चीजें रिपोर्ट नहीं करती। सही चीजों को एड्रेस करेंगे तो देश सही दिशा में आगे बढ़ेगा, लोग सही तरीके से सोचेंगे, ये हमारी कोशिश होती है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।